students, this is Sukhdev sir, welcomes you once again in the web classes. Students, from few videos we are doing chapter number 1 of your 12th accountancy part 2 textbook, and this is the lecture number 8 of the chapter number 1. In the previous video we have understood how the shares are issued with premium and did an illustration based on this concept. Today we are going to do another illustration with some specific journal entries. Maybe there is a specific account which need to be opened, kind of bank account. Let's start what the illustration says. Students, this is illustration number 8 which we are going to solve today. Let's read first. Authorized capital of Disita Plastic Company is 5 lakh equity shares of rupees 10 each. Means how many shares are there in authorized capital? So company issued 4 lakh equity shares at a premium of rupees 80 per share for public subscription. Share amount was called up as under. That means this company named Disita Plastic Company, which is made of authorized capital of rupees 50 lakh. How you can say that it is a 50 lakh company? Then there is 5 lakh total shares. How many shares are there? 5 lakh, and per share value of a share is 10 rupees. Then you can multiply, then it will come to rupees 50 lakh. तो 5 lakh इक्विटी शेयर्स की कंपनी की ऑथोराइज्ड शेयर है कंपनी के पास. तो कंपनी ने इश्यू कितना किया है? 4 lakh का इश्यू किया है. उसके बाद में देखते हैं. On 11th July 2017 with application rupees 84 per share including premium of rupees 80 per share. मीन्स कंपनी ने जो 10 रुपये का शेयर है दैट वॉज इश्यूड विथ अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 80 रुपये का प्रीमियम था उसके अंदर. तो ये 80 रुपीज़ का जो प्रीमियम है, आप अगर देखने जाओगे तो यहाँ पर शेयर की प्राइस 84 में 80 रुपीज़ का प्रीमियम है. तो शेयर कितने का हुआ? 4 प्लस 80. On 11th September 2017 with allotment rupees 3 per share. Means application में 4 रुपये, allotment में 3 रुपये. On 11th of November 2017 with final call rupees 3. That means total value of a share is rupees 10. Face value of a share. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. The subscription was closed after receiving full subscription of shares on 11 July 2017. On 21st July 2017, directors made allotment of all the shares applied for the sum due on allotment, except on 4,000 shares was received on 21st September. Then 2017, where amount due on final call was duly received on the mentioned date except additional 2,000 shares. Means यहाँ पर अगर आप देखने जाओ तो except around 4,000 shares was received on 21st September. तो यहाँ पर 2,000 शेयर्स हैं, उनकी अमाउंट कॉल की जो फाइनल कॉल है उसकी रिसीव नहीं हुई है. तो सबसे पहले अभी तक की हमने जितना भी मैसअप किया है, like normal journal entries for the accounting share capital, then how it is issued with face value, how it is issued with premium. We have understood how it is issued with the premium in the previous video. I am going to revise you the basic entries of the passing journal entries while issuing the share at a face value. कोई भी वैल्यू से अगर शेयर इश्यू किया है तो उसकी जो नॉर्मल कॉमन बेसिक एंट्रीज है वो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. उसके बाद में हम ये इलस्ट्रेशन करेंगे. और उसमें बोला क्या है? पास नेसेसरी
pass necessary journal entries in the respect of above transactions except बैंक ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर बैंक अकाउंट ओनली। मीन्स इसमें आपको बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला है। तरीके से की जाती है। तो पोस्टिंग का तो एक ही रूल था, जो भी अकाउंट आप डेबिट करते हो उसके डेबिट साइड में क्रेडिट अकाउंट का नाम लिख दो, और जिसको भी आप क्रेडिट करते हो उसके क्रेडिट साइड में डेबिट वाले अकाउंट का नाम लिख दो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, जैसे अगर आपको इस तरह से एक एंट्री दी है, मान लो एप्लीकेशन की एंट्री ले लेते हैं, तो वो एंट्री क्या होगी अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, ये जनरल एंट्री है। तो अगर आपको इसमें पोस्टिंग करनी है तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो बैंक अकाउंट अगर आपने प्रिपेयर किया है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में देयर आर टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में क्या होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, एंड जो भी लेजर फोलियो नंबर होता है। क्रेडिट साइड में भी सेम ऑप्शंस होते हैं। तो डेबिट साइड में आपको बैंक अकाउंट के डेबिट में नाम किसका लिखना रहेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बराबर, और जो भी अमाउंट होगी वो डेबिट साइड के कॉलम में लिखनी है। वैसे ही अगर आपको शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट खोलना है, प्रिपेयर किया है आपने शेयर एप्लीकेशन का, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप किसका नाम लिखोगे, बैंक अकाउंट का नाम लिखोगे, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से पोस्टिंग की जाती है। तो ये वाले इलस्ट्रेशन को समझने से पहले एक बार बेसिक एंट्रीज क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ नालायक अभी तक वीडियोस देखते ही नहीं हैं, तो गलती से शायद ये वीडियो देखें, तो उनके लिए एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर से ध्यान से देख लेना। चलो, कॉमन एंट्री जो होती है वो इस तरीके से होती है, बैंक अकाउंट हमेशा आप डेबिट करते हो, क्या करते हो, डेबिट, तो बैंक अकाउंट जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्लियर है। बैंक अकाउंट पहले डेबिट करते हो, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री है। कोई भी ट्रांजेक्शन हो, किसी भी टाइप का एंट्री यही कॉमन रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसको जब एडजस्ट करके ट्रांसफ़र करना हो शेयर कैपिटल में, तो आपको जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपने जो क्रेडिट किया उसको आप सबसे पहले क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो शेयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सेकेंड वाली एंट्री डेबिट किया, और इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है आपने को, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। फर्स्ट वाली टू एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री में हम पैसा कलेक्ट करते हैं, मनी रिसीव करते हैं, तो जब भी मनी रिसीव होता है तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अगर मान लो एक्सेस मनी आई है, लाइक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है, तो उसको रिटर्न करना हो तो यही एंट्री को रिवर्स कर देने का, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन वो हम नॉर्मली सम्स करते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। इसकी जो मेन सेकेंड एंट्री है वो इस तरीके से, जब शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट को, तो टेम्पररी अकाउंट यहाँ पर हमने खोल के रखा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था, अभी उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये बेसिक एंट्री से दो एंट्री आप कुछ भी करके इसको अच्छे से समझ लो, एप्लीकेशन के टाइम पे दो एंट्री होती है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, वो एंट्रीज में अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकेंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, कोई भी टाइप की कॉल हो, तो ये खाली इतना याद रख लो कि जर्नल एंट्रीज जो है अलग अलग पार्ट में होती है। पहले आप लोग क्या बताओगे कि जब भी मान लो इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी शेयर इश्यू करती है, तो ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत भाई मैंने अभी बोला अभी के अभी हफ्ता निकालो, अभी के अभी पैसा ला के दो, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, क्रेडिट कार्ड का बिल हो, कभी भी आता है तो आपको लगभग 15-20 दिन पहले वो आपके पास अमाउंट आ जाती है और आपको वो बिल पे करने का टाइम मिलता है। उसी तरह से शेयर में भी ऐसे ही है, कंपनी जो है पहले ड्यू नोटिस देती है कि आपको
इतना ड्यू है, तो ड्यू करने की एंट्री और उसके बाद में मनी रिसीव करने की एंट्री। तो ड्यू करने के टाइम पे जिस नाम से ड्यू है उस नाम को हमेशा डेबिट करो। नाम मतलब क्या सर? नाम मतलब अलॉटमेंट का पैसा है तो अलॉटमेंट को डेबिट करो, फर्स्ट कॉल का तो फर्स्ट कॉल को डेबिट करो, सेकंड कॉल का तो सेकंड कॉल को डेबिट करो, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल को डेबिट करो, ठीक है। और ड्यू करने के टाइम पे ही आपको डेबिट करना है, और डेबिट करने के टाइम पे सभी में कॉमन अकाउंट क्रेडिट होगा, वो है शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लो कि आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट अगर आपने मंगवाई है तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? अलॉटमेंट का मंगवाया सर, अलॉटमेंट को हम डेबिट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, अलॉटमेंट, शॉर्ट में लिखता हूँ, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और कॉमनली हम किसको क्रेडिट करते हैं? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये अलॉटमेंट का मंगवाया, वैसे ही हम फर्स्ट सेकंड फाइनल तीनों नाम अलग अलग है, खाली प्रोसेस सबकी सेम। मान लो फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल मंगवाएंगे तो फाइनल कॉल को हम डेबिट करेंगे, तो फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल। नाम पूरा क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जब आपको फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा तब क्या एंट्री करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, जिसको आपने शुरू में ड्यू के टाइम पे डेबिट किया था उसी को आपको क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब इसके अंदर जहाँ जहाँ पर बैंक की एंट्री थी वो सारी बैंक अकाउंट में हम डायरेक्ट उसकी पोस्टिंग कर देंगे, और बैंक की एंट्री के अलावा जो भी बचेगा उसको हम जो जर्नल बना के रखी है उस जर्नल में हम उसकी एंट्री करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है, क्या इसमें दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले हमारी कॉमन एंट्री, जो बैंक वाली एंट्री होती है ना, वो बैंक वाली एंट्री का मैं आपको नंबर बता देता हूँ। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन का इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले किसका इंस्टॉलमेंट आता है? एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन के इंस्टॉलमेंट में सबसे पहली एंट्री बैंक की एंट्री होती है, क्योंकि पहले पैसा लेते हैं उसके बाद में हम बात करते हैं, क्योंकि उसमें कितने शेयर्स का सब्सक्रिप्शन, कितने शेयर्स के एप्लीकेशंस मिलने वाली कुछ फाइनल नहीं होता है। तो अलॉटमेंट और कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, तीनों के नाम नहीं ले रहा हूँ, खाली कॉल। अलॉटमेंट और कॉल की बात अलग है, उसमें हम पहले ड्यू करते हैं बाद में पैसा लेते हैं, तो बराबर। तो अलॉटमेंट की एंट्री के बाद की जो एंट्री होती है वो बैंक वाली होती है, कॉल की ड्यू करने के बाद में बैंक की एंट्री होती है। वैसे एप्लीकेशन में थोड़ा अलग है, एप्लीकेशन में पहले आपको पैसा मिलता है और उसके बाद में उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हो? शेयर कैपिटल में। तो बैंक अकाउंट वाली जितनी एंट्रीज है वो पहले मैं आपको बैंक अकाउंट में करवा देता हूँ, बाद में जो बचेगी वो सीधी सीधी आपने को कहाँ लिखने की रहेगी? ऑड नंबर्स में लिख देंगे अपने। सबसे पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो पहली एंट्री अगर आप देखोगे सर इसमें तो है ही नहीं है, क्योंकि हमको बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला। तो बैंक अकाउंट अगर नॉर्मली एंट्री करोगे तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने पोस्टिंग का क्या रूल बताया था आपको? पोस्टिंग का रूल ये बोलता है कि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, दैट मीन्स इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट वी सेल, जो भी अकाउंट दिया आपको क्रेडिट वाला उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा वहाँ पर। तो चलो देख लेते हैं लिखा है कि नहीं लिखा है इन लोगों ने। हाँ ये देखो, बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ दिशिता प्लास्टिक कंपनी। तो इसका डेबिट साइड ये रहा और इसका क्रेडिट साइड ये रहा। क्रेडिट साइड आप देखोगे पूरा पूरा खाली है, क्योंकि नॉर्मली जब कंपनी शेयर इश्यू करती, कंपनी पैसा लेती है, देती नहीं है बिल्कुल भी। तो देखोगे तो ये रहा आपकी डेट जो स्टार्टिंग में लिखी है, डेट का इतना इश्यू नहीं, आप पहले इसका कंसेप्ट समझो। देखो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो इसके डेबिट साइड में हमने किसका नाम लिख दिया? क्रेडिट वाले का। तो ये रहा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो कितने शेयर्स पे मिला था हमको? 4 लाख शेयर पे मिला था, और कितने रुपए मिले थे? 84 रुपीज़ मिले थे, बराबर है। 4 लाख शेयर्स पर 84 रुपीज़ मिले थे, तो 4 लाख इंटू 84 करोगे तो आपको ये वाली अमाउंट मिल जाएगी। तो फर्स्ट बैंक अकाउंट की एंट्री क्लियर हुई। सेकेंड एंट्री में मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट किया था उसको हम डेबिट करेंगे तो वो अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड वाली एंट्री देख लो, बता देता हूँ आपको मैं। ये रही आपकी सेकेंड एंट्री, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट थी बैंक में पूरी
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में स्टूडेंट आप देखोगे बच्चों तो 4 लाख शेयर्स है और शेयर की प्राइस एक्चुअली में कितनी है 4, तो 4 लाख इंटू 4 करोगे तो 16 लाख। फिर सोचो कि सर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ से आया, तो अगर आपने सवाल ध्यान से पढ़ा हो, सम ऊपर जो लिखा है उसमें बोला 80 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो 4 लाख शेयर पर शेयर 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 4 लाख इंटू 80 अगर आप करते हो तो ये रही आपकी अमाउंट 3 करोड़ 20 लाख। ये किस में जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हमने की थी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्लियर है। सेकंड वाली एंट्री शेयर एप्लीकेशन टेम्पररी अकाउंट है, तो उसको पहले क्रेडिट किया था, तो अभी हम उसको क्या कर देंगे, क्लोज करेंगे डेबिट करके। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया हुआ है। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट दी है वो। और सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट 80 रुपीज़ है, तो 4 लाख इंटू 80 करोगे तो 3 करोड़ 20 लाख आपको अमाउंट मिल जाएगी। तो ये शुरुआत की 2 एंट्री में ध्यान रखना होता है। थर्ड नंबर अलॉटमेंट, पहले ड्यू करोगे, तो ड्यू जिस नाम से करते हैं वो डेबिट, अलॉटमेंट की मनी है तो अलॉटमेंट डेबिट करोगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सभी में कॉमन क्रेडिट है शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इसमें तो कहीं बैंक का नाम है नहीं तो लिखना पड़ेगा ना सीधा सीधा, देख लो सीधा सीधा ही लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो अलॉटमेंट को आपने ड्यू बता दिया, तो आपको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा 15-20 दिन के बाद। इसमें डेट लिखी है तो डेट आप देख देख के लिख सकते हो। तो अलॉटमेंट का पैसा मिलता है, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब ड्यू करने के टाइम पे आप जिसको डेबिट करते हो, पैसा मिलने के टाइम पे उसको आप क्लोज कर दो। क्यों, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी कॉल है, सारे के सारे टेम्पररी अकाउंट है। जैसे आपको ड्यू करके पैसा मिल जाता है, उसके बाद आप इसको क्या कर देते हो, क्लोज कर देते हो, बराबर। तो जो भी टेम्पररी अकाउंट है, जितने भी कॉल या इंस्टॉलमेंट के नेम दिए हुए हैं, सारे के सारे दो एंट्री में ओपन करके तुरंत का तुरंत आप क्या कर देते हो, इसको क्लोज कर देते हो। तो अलॉटमेंट का ड्यू बता दिया। अब इसका पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखा होगा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो सेकेंड एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये रहा बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, ध्यान से आपको बता देता हूँ पहले। ये बैंक अकाउंट है, इसका डेबिट साइड है और ये नाम लिखा है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली अमाउंट भी मेंशन किया है। खाली आपको 4000 शेयर्स, जो इसमें आगे बताया था कि 4000 शेयर्स के पर शेयर 3 रुपीज़, ये आपको मिलने वाले नहीं है। तो जितनी भी अमाउंट है उसमें से आप 12,000 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ये आपको नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो इसकी एंट्री आप कैसे करोगे, तो जो भी पैसा मिलता नहीं है वो जाता है कॉल्स इन एरियर्स में। किस में जाता है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। तो आप देख लो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसकी एंट्री की होगी, नहीं की होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, की हुई है, ध्यान से देखो 12,000 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और किसका पैसा था, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,000। ठीक है, अब हम मंगाएंगे फाइनल कॉल। तो बच्चों फाइनल कॉल का पैसा कितना है वो भी देख लो, सम में दिया होगा। फाइनल कॉल में जो है 3 रुपीज़, तो ड्यू करो, मंगवाओ पहला। तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करोगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू करने की एंट्री है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा मिलता नहीं है, तो चलो ड्यू कर दो, ड्यू बता दो इसको। ये रहा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 12 लाख कैसे आया, तो 4 लाख इश्यू हुआ था, पर शेयर 3 रुपीज़ फाइनल कॉल का, तो 4 लाख इंटू 3 करोगे, दैट मीन्स इट इज़ 12 लाख, बराबर। तो अब आप सोच रहे होंगे सर पैसा मिलेगा फाइनल कॉल का तो कितना मिलेगा। तो बच्चों अगर सवाल आपने ध्यान से पढ़ा हो तो अलॉटमेंट के टाइम पे ये 4000 जिसने पे नहीं किया है, तो सीधी सी बात है उसने ये पैसा कॉल में भी पे नहीं किया होगा, और कॉल में एक एक्स्ट्रा और भी आ गया था 2000 वाला। तो टोटल आपको 6000 और पर शेयर 3 रुपीज़, मीन्स आपको 18,000 रुपीज़ जो मिलने वाले नहीं है। तो कितना मंगवाया है हमने, ड्यू कितना किया है, तो ड्यू किया है 12 लाख। 12 लाख में से आप जो है 18,000 माइनस कर दो, तो 12 लाख में से 18 माइनस करो तो कितना बचेगा, 11,82,000। देख लो जो भी अमाउंट होगी इसमें बताएगा। ये रहा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 11,82,000, उसमें से आपको 18,000, 6,000 इंटू 3, 18,000 पैसा मिलेगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें बाद में ऐसा बोला था कि उसका पैसा मिल गया था,
तो किसका पैसा मिल गया? तो देख लो, ये 18,000 जो बताया है फाइनल कॉल का पैसा इसमें मिल गया था। देखो पूरा लास्ट में लिखा हुआ है, was fully received by 21st November 2017 except additional 2000 sets। तो यहाँ पर जो है, यहाँ देखो क्लियर लिखा है, some due on allotment except on 4000 sets were received on 21st September 2017। तो ये जो भी अमाउंट है, ये अमाउंट आपको मिल गई थी। तो जब भी पैसा मिलता है तो हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट किया था, पैसा मिलेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, बराबर। तो पैसा मिलने के टाइम पे हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। क्यों कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट? क्योंकि उसी को डेबिट किया था जब नहीं मिला था, तो अब मिल रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, जिससे ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बराबर। तो बैंक अकाउंट आया तो बैंक अकाउंट में इसकी एंट्री होनी चाहिए लास्ट वाली। तो देख लो इसके अंदर नहीं, सॉरी इसमें नहीं होगी, कॉल्स इन एरियर्स को हमने डेबिट किया है, तो ये पैसा 18,000 नहीं मिलने वाला था, बराबर। तो अगर ये पैसा मिलने की एंट्री आपको इसमें दी हुई हो तो वो एंट्री करने की, अदरवाइज नहीं करने की, ठीक है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने का बोला हो तो बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज है वो बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाएगी, और बाकी जो बची है लाइक ड्यू की एंट्री हो, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो, ये सारी एंट्रीज जो है किस में जाने वाली है, जर्नल्स में। मतलब आप जो एंट्रीज करते हो जर्नल एंट्रीज, उसी में आप इसको लिखोगे, और बैंक अकाउंट की जो एंट्री वो किस में जाने वाली, बैंक अकाउंट में जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये वाला इलस्ट्रेशन जो है आपका पूरा हो गया आज। अब मैं आपको एक कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ साथ में, फोर फीचरिंग का ट्राई करता हूँ, ऐसा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको रिवाइज करेंगे। चलो यहाँ से मैं ये फोर फीचर होता है क्या एक्चुअली में, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, फोर फीचर का एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको। फोर फीचर का मतलब एक्चुअली में होता है जब्त कर लेना, छीन लेना। छीन लेना तो कैसे बोलेंगे, किसी के पास होगा तो छीनेंगे। जब्त कर लेना मतलब आपने जो भी पैसा भरा वो पैसा आपका जब्त हो गया। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ कि आप में से किसी एक ने, कोई भी नाम ले लो, जैसे हमारे अनुराग भाई है, बराबर। अनुराग ने एक मस्त अच्छी सी बुलेट ली, कितने की ली, लगभग सबसे लेटेस्ट टॉप मॉडल लिया, 3 लाख का, 3 लाख रुपए की उसने बाइक ली बुलेट, बराबर। और उस टाइम पर इन भाई के पास इतना पैसा नहीं था कि वो 3 लाख पूरा भर सके, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना लोन पे ले लूँ। तो थोड़ा बहुत पैसा जो था वो इन्होंने डाउन पेमेंट भर दिया, और बाद में बाइक की क्या करवा, बुलेट की क्या करवा दी, उसने लोन करवा दी। अब जो है लोन करवाई इन्होंने, मान लो कि जो भी लोन का टाइमिंग हो, 10 महीने की लोन करवाई है, और हर महीने इनको जो है 15,000 रुपये भरना है, बराबर। 1.5 लाख रुपये इन्होंने ऐसे ही भर दिया था डाउन पेमेंट का, और बोला कि मैं लोन करवाऊंगा 10 महीने की 15,000 करके 10 महीने में 1.5 लाख रुपया भर दूंगा बाकी का, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि इन्होंने 3-4 हफ्ते भर दिए। 3-4 हफ्ता भरने के बाद फिर जैसे अभी सिचुएशन चल रही, कोरोना आ गया। कोरोना पैंडेमिक में जो है सारे धंधे पानी बंद हो गए, किसी का कोई बिजनेस चल नहीं रहा था। तो हमारा अनुराग भाई का धंधा भी ठप था, बराबर, जो भी धंधा करते धंधा बंद हो गया, और उस टाइम पे पैसे थे नहीं। तो सोचा कि यार बुलेट का हफ्ता आ रहा है तो ये बाइक का हफ्ता पे कैसे करेंगे, क्योंकि हर महीने का इसको कम से कम 15,000 पे करना रहता था, और उसमें जो है मोराटोरियम भी इन्होंने लिया नहीं क्योंकि इतना पता नहीं चलता था। तो मान लो कि अब जो है इन्होंने बुलेट का पैसा नहीं भरा, तो आप लोग समझदार हो, क्या हुआ होगा अनुराग भाई के साथ, बताओ। तो इसके अंदर आप लोगों ने सोचा होगा सर बुलेट तो अनुराग के पास पड़ी होगी, तो बैंक वाले घर पे आएंगे, बराबर। मान लो कि अनुराग भाई से मिलने आए, 2-3 बार बोला कि भाई पैसा भर दो, पैसा भर दो, और अनुराग भाई के पास बोले पैसा नहीं है मेरे पास, मैं अभी नहीं भर सकता, बाद में भरूंगा, ऐसा ऐसा बोला। और बैंक वाले तो कहाँ किसी की सुनते हैं, 2-3 बार बोला, 4 बार बोला, 5 बार बोला, नहीं समझा तो नहीं समझे। अब पैसे है नहीं, सीधी सी बात है, जिसके पास पैसे नहीं वो पैसे भरेगा कहाँ से। तो अनुराग भाई जो एक बार क्या हुआ था, घर पे बुलेट रखी हुई थी, घर वाले भी थे, पर अनुराग खुद घर पे नहीं था। तो बैंक वाले जो है बुलेट था, घर वालों से चाबी ली और बुलेट को क्या कर लिया, सीज कर लिया। क्या कर लिया, सीज कर लिया, मतलब बुलेट लेकर गए, और साथ साथ में अभी तक इस बुलेट का जितना पैसा भरा है वो पैसा भी गया और बुलेट भी गई। तो आप सोच रहे होंगे सर ये कहानी टाइप क्यों बता रहे हो, तो बेटा शेयर्स में भी ऐसा ही होता है।
कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, अगर वो शेयर्स जो हैं आपने टोटल कंपनी जो है हमेशा इंस्टॉलमेंट में ही पैसा मंगवाती है, एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा मंगवाती है, बराबर, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा मंगवाती है, कॉल होता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो मान लो कि आपने टोटल कंपनी के 4 हफ्ते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, उसके बाद की 2 इंस्टॉलमेंट आप पे करने में सक्सेस नहीं हुए, मतलब आप पेमेंट कर ही नहीं पाए उसका, तो क्या करोगे? जितने शेयर्स आपके पास पड़े हैं वो शेयर्स कंपनी ले लेगी, क्योंकि आजकल जो है वो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स नहीं होते, डीमेट अकाउंट में होते तुम्हारे शेयर्स। तो कंपनी क्या करेगी? वो शेयर्स को सीज कर लेती है, वो शेयर्स को सीज करेगी और साथ साथ में आपने पर शेयर जितना भी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, मान लो 2 हफ्ते भरे हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, तो वो पैसा वापस नहीं मिलता, वो पैसा भी आपका क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं? फोरफीचर ऑफ शेयर्स, बराबर। शेयर्स को जब्त कर लेना, समझ गए होंगे। तो अगर पैसा नहीं भरते तो भरा हुआ पैसा भी जाएगा और साथ में आपके पास जो भी वस्तु पड़ी है, प्रोडक्ट हो या फिर शेयर्स है, वो आपके शेयर्स भी चले जाएंगे, बराबर। ऐसा होता है। तो एक बार थोड़ा बहुत मैं आपको मीनिंग तो इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो मीनिंग समझोगे इसमें जो दिया है तो आपको थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया है वो सब यहाँ लिखा हुआ है, देखो। ड्यू टू एनी रीज़न, इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट call within the informed specified period by company, then company can forfeit means seize his share by completing due formalities. In normal situation, directors of the company are empowered by articles of association of company to forfeit the shares. कंपनी के पास राइट होता है सीज करने का। Follow the rules laid down in the Articles of Association for the procedure of forfeiture of shares, or if no rules are given in articles for these provisions of the Table F, Schedule 1 of the Company Act 2013 shall apply. So a process of forfeiture or cancellation of shares by director of company is called forfeiture of shares. बराबर। तो पैसा अगर नहीं भरा होगा तो कंपनी के पास राइट होता है कि कंपनी उस शेयर को कैंसिल कर सकती है, फोरफिट कर सकती है, फोरफिट कर सकती है। फोरफिट में क्या होता है? शेयर्स जो है सीज हो जाएंगे, कंपनी के पास पड़े रहेंगे, क्लियर है। और जो शेयर्स का पैसा भी था वो भी गया, बराबर। समझ गए मीनिंग? थोड़ा सा और देख लेते हैं। आफ्टर द फोरफिचर द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, इट मीन्स नाउ दिस पर्सन इज नॉट कॉल्ड अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सीधी सी बात है, उसके जो शेयर्स हैं वो सीज कर लिए हैं, जो पैसा भर नहीं पाए, तो शेयर होल्डर की जो रजिस्टर होती है उसमें से उसका नाम निकाल दिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो शेयर्स का कंपनी करेगी क्या? तो आगे वाले पॉइंट्स में ये आने वाला है कि कंपनी इस शेयर्स का क्या करती है, बराबर। चलो थोड़ी बहुत लाइन्स बची, ये भी बता देता हूँ, कल से इसको जर्नल एंट्री के हाथ पे बताऊँगा। For forfeited shares, the amount already paid by the shareholder to the company is forfeited by the company. It means this amount is not returned to the shareholders. Clear है? जो अमाउंट पे कर दी गई है वो अमाउंट जो है कंपनी क्या करती है? फोरफिट कर लेती है और साथ में शेयर्स भी चले जाते हैं, बराबर। नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीजेस ड्यू टू फॉरफिचर ऑफ शेयर्स एंड हैंड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। तो कंपनी का शेयर कैपिटल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उतने शेयर्स का पैसा कंपनी के पास आया नहीं, दैट मीन्स द कैपिटल इज डिक्रीज्ड। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को फोरफिचर के टाइम पे, जब भी शेयर फोरफिट किए जाएंगे उस टाइम पे शेयर फोरफिचर जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय शेयर होल्डर इन द कंपनी ऑल्सो गेट्स फोरफिटेड विथ फोरफिचर ऑफ शेयर एंड द सेम इज क्रेडिटेड टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। यहाँ पर 2 अकाउंट रहेंगे। शेयर्स की नंबर्स, शेयर के जो नंबर से कम होने की वजह से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और जो पैसा भर दिया गया है वो शेयर फोरफिचर अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आप अच्छे से समझ लेना इसको, नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ा आएगी, देखेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, डू वट एवर यू वांट टू डू।